welcome back to my channel, and today we are going to read the cards for you for the month of January 2024. We will see what energies are you inviting from the universe and what are your key messages for the month of January, and we will try and take some extended messages for the year, considering we are actually moving to a new year now. And let's see what are you really getting from the universe. Let's get ahead. To summarize this reading, to elaborate this reading, and to read the messages further, we are using different decks here. At least 5 to 7 decks is what we are using in your reading to clarify messages, to make sure just validate the messages which are coming from one particular deck, and then what exactly the key messages are and how the year is concluding. We're using two different decks again here to conclude the year-end messages for you and the month-end messages for you. So let's get ahead. The very first card for you is a spiritual teacher card. You heal with your classes, sessions, and seminars. Scorpions, this card is something which is, honestly, I'm not surprised for this card to come in a Scorpions reading. Scorpions are someone which is considered to be a very mysterious sign. This is a sign which is very close to the spirituality, and you will find a lot of Scorpions to be interested in occult signs, and then the mysterious way of meditation, and there are multiple things what a Scorpion can only explain to people. So स्कॉर्पियंस के लिए सबसे आई थिंक ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है. एक और जो की मैसेज आपके लिए इसी कार्ड से आता है, दैट यू शुड एक्चुअली फोकस ऑन मेडिटेशन. आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, और मेडिटेशन करने से आपको ना सिर्फ बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, बल्कि आपको सेल्फ डेवलपमेंट का भी एक अलग नया तरीका आप फिगर आउट कर पाएंगे. उसके अलावा बहुत काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि स्कॉर्पियंस जो हैं इस मंथ में किसी तरह के स्पिरिचुअल सेमिनार्स या क्लासेस का भी हिस्सा बन सकते हैं. आपकी जो नॉलेज है, आपका जो जो इंटरेस्ट है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा स्कॉर्पियन. सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड फॉर यू. जो आपके मंथ का स्टार्ट हो रहा है वही बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है. दैट्स देयर. एक बहुत ही डिफरेंट कार्ड पहली बार स्कॉर्पियंस के रीडिंग में आया है. पहली बार इसलिए बोल रही हूँ कि स्कॉर्पियंस का हमेशा शिकायत रहता है कि हमारा लाइफ जो है बहुत पॉजिटिव नहीं चल रहा है. चैलेंजेस बहुत आते हैं स्कॉर्पियंस के लाइफ में, और उतनी इजी नहीं होती है. बैक स्टैबिंग के भी बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं जो लोग आई हैव सीन पीपल कमिंग अप विद दैट काइंड ऑफ इशू ऑल्सो. सो ऐसा नहीं है बाकी लोगों के साथ नहीं होता, लेकिन स्कॉर्पियंस के साथ थोड़ा सा ट्रस्ट इशू का इश्यूज रहते हैं. उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है लोगों को ट्रस्ट करना. प्लस कई बार स्कॉर्पियंस बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं. ऐसे इट डिपेंड्स हाउ यू आर योर इमोशनल डेवलपमेंट एंड अपब्रिंगिंग हैज़ बीन, एंड देन वहाँ पर उनको थोड़ा सा धोखे का सामना करना पड़ता है. आगे बढ़ते हैं रीडिंग में. हमने एज आई सेड आई एम यूजिंग मल्टीपल डेक्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर रीडिंग एंड क्लैरिफाई मैसेजेस. एंड अदर देन व्हाट यू सी राइट नाउ ऑन द टेबल, we will be pulling more clarification cards to clarify if any specific card needs more clarification here. So let's get ahead. Scorpions, I think that the one message which is coming for Scorpions in the very first week of January is that enough is enough. I can't do it anymore. And the people, the places, the emotional, actually the people who were using you as for your emotions, their emotion well-beings, and you were actually used as a subject to fulfill people's emotion, and they were using you to fulfill their own motive, their own अपने खुद के कामों को फुलफिल करने के लिए आपको इमोशनली इस्तेमाल कर रहे थे. अब जो है अब इनफ हो गया है. थोड़ा अथॉरिटेटिव अप्रोच आती है स्कॉर्पियंस आपके अप्रोच में. ये कार्ड मैं आपको दिखा सकती हूँ. लुक एट दिस पर्सन. अगर आपने 8 ऑफ कप्स देखा है, आप टैरो बहुत वक्त से देख रहे हैं, 8 ऑफ कप्स ऐसा कार्ड होता है जहाँ पे आप किसी स्टेब्लिश चीज़ को छोड़कर जो है ना आप वापस आगे बढ़ जाते हैं. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जनवरी आपको वो मौका दे रहा है जहाँ पर अपने पास्ट को या अपनी पास्ट एनर्जीज, पास्ट रिलेशनशिप के पास वापस जाकर उसी रिलेशनशिप से यू कैन हैव समथिंग फ्रूटफुल इन योर लाइफ. सो यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूँगी रीयूनियन के चांसेस हैं. यहाँ पर इमोशनल कनेक्ट आपके रिलेशनशिप में पूरी तरह टूटा नहीं था, तो आप उसी रिलेशनशिप को यू आर ट्राइंग टू फुलफिल इट, एंड यू ट्राइंग टू गेट एडवांटेज ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, और आप इसको इसी को वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है इस बार आप काफ़ी ज़्यादा, आपकी स्ट्रिक्ट अप्रोच है काफ़ी ज़्यादा.
आप कुछ भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहते हैं, और सामने वाले इंसान को भी आपने ये बात जता दी है कि आप चीज़ें हल्के में नहीं ली जा सकती हैं। आप ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि कार्ड के साथ वॉन्ड भी है, कार्ड के अंदर यू हैव अ वॉन्ड इन योर हैंड। वॉन्ड टॉक अबाउट पैशन, वॉन्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट इफ़ यू रिमेंबर योर स्कूल डेज, the wand what you had in your teacher's hand was something which was a that was a symbol of discipline. So discipline is coming your way, Scorpions. ये मंथ आपके लिए और ये साल आपके लिए डिसिप्लिन लेकर आएगा. You will start keeping yourself in discipline. इसके अलावा आई ऑल्सो सी समथिंग न्यू गेटिंग स्टार्टेड फॉर स्कॉर्पियंस. ये कोई नया जॉब हो सकता है. अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए कुछ नया आ सकता है. और अच्छी बात यह है कि जो नया आ रहा है ये एक्चुअली आपके फैमिली लाइफ को भी मेंटेन करके रखेगा. तो आपकी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है इसके साथ. इट इज़ अ न्यू गुड अपॉर्चुनिटी और ये अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी है. ऐसा नहीं है कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप इस अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे, ऐसा नहीं है. ये अपने आप गॉड गिवन गिफ्ट है आपके लिए आएगा और आप इसे एक्सेप्ट भी कर लेंगे ना. एक्सेप्ट आप इसलिए भी कर लेंगे क्योंकि हालांकि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये एकदम से आ रही है, लेकिन इन कॉन्टिन्यूएशन टू दैट स्कॉर्पियन ये कुछ ऐसा है जो आप चाहते थे. आप चाहते थे आपकी लाइफ में आए, ये आप चाहते थे ये चीज़ आपके आप यू गेट इट, बट देन ये हो नहीं पा रहा था. टाइम की कमी हो सकती है, डिसिप्लिन की कमी हो सकती है, सही वक्त नहीं था, लेकिन अब ये चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है. सो अ लॉन्ग अवेटेड गिफ्ट फ्रॉम द गॉड इज कमिंग टू यू इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024. स्कॉर्पियंस, जहाँ स्कॉर्पियंस काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे, जहाँ स्कॉर्पियंस काफ़ी ज़्यादा इमोशंस को वैल्यू देने वाले हुआ करते थे. ऐसा नहीं है कि आप इमोशंस को वैल्यू नहीं दे रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि अब आप इमोशंस को वैल्यू देंगे, लेकिन एक प्रैक्टिकल वे में आप इमोशंस को भी ट्रीट करेंगे. दूसरी जो चीज़ वो इम्पॉर्टेंट है स्कॉर्पियंस के लिए, दिस इज समथिंग विच इज़ हैपनिंग इन द फर्स्ट वीक. आई थिंक आपका जो कुछ साल रहे हैं, मे बी 2021 टू नो आई थिंक 2018 ऑनवर्ड्स आपका जो साल रहा होगा, या 2013 भी हो सकता है. ओके, 2018-19 के ऑनवर्ड्स का जो साल रहा है वो वहाँ से आपकी जो ट्रबल है ज़्यादातर मैक्सिमम शुरू हुई है स्कॉर्पियंस. और वहाँ से आप जब आगे बढ़ रहे हैं तो अब आपकी जो लाइफ है वो इट इज़ टेकिंग इट्स नॉट अ यू टर्न, आई विल से इट इज़ टेकिंग अ डिफरेंट टर्न ऑल टुगेदर. ये लाइफ, ये बात आपने पहले कभी लाइफ में लिया ही नहीं है, तो ये नया है आपके लिए और आप इसको बहुत इन्जॉय करने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम्स कम कर देगा लेकिन सामने वालों को की प्रॉब्लम्स बढ़ा देगा. या ये कहें कि अब वो आपको उस तरह से यूज़ नहीं कर पाएंगे जिस तरह से वो पहले कर रहे थे. ये उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट है. सो डोंट वरी, यू नीड नॉट टू बी वरी अबाउट इट. सेकेंड वीक ऑफ the January and the further weeks of January look like कि आपका जो ओके होल्ड ऑन, आई वोंट टेल यू समथिंग सॉर्पेंस. ये मंथ कार्ड के प्लेसमेंट्स को देखकर एक जो की मैसेज मुझे यहाँ पे नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि ये मंथ ना काफ़ी कुछ जस्टिस को लेकर फोकस्ड रहेगा. जस्टिस, डिसिप्लिन, आपने जो सर्व किया है लोगों को वो आपको वापस आएगा. तो टू बी प्रिसाइज, कर्मा विल बी देयर. तो ये कर्मा, जस्टिस, डिसिप्लिन से बिल्कुल ही रैप्ड अप मंथ है. यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, आप कुछ लीगैलिटी से भी डील कर सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि आप किसी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन से भी डील करें, वो भी हो सकता है. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं. देखिए 8 ऑफ कप्स की जब मैं बात कर रही थी, आपको बताई थी कि 8 ऑफ कप्स आने वाला है. उसी तरह से द जस्टिस कार्ड हैज ऑल्सो अपीयर्ड हियर. जो जस्टिस आपको पहले सर्व नहीं हुआ था, दिस इज द कार्ड फ्रॉम द बिफोर टैरो डेक. आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई, बिफोर टैरो यूज़ करने का यहाँ इंटेंशन ये था कि पहले आप किस तरह के सिचुएशन में थे पिछले साल या उससे पहले के सालों में, उसके बाद जो अब सिचुएशन है वो कैसी है, और जो आने वाली सिचुएशन है वो किस तरह की दिखती है. मैं आपको आपकी आने वाली सिचुएशन दिखाऊंगी. कार्ड बहुत पॉजिटिव है स्कॉर्पियंस आपके लिए. कुछ एक कार्ड हैं जिनको हम क्लैरिफाई करेंगे, जिन्हें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है. एज आई सेड, आपकी करंट सिचुएशन मैं ये नहीं कहूँगी बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है. आप अकेले हैं अपनी लड़ाई में, आपके साथ कोई नहीं है. लेकिन खूबसूरती इस कार्ड की ये है कि हालांकि आप अकेले हैं लेकिन फिर भी आप ही विनर हैं. आपको कोई हरा नहीं पाएगा. इवन अब आपके पास सामने 5 लोग खड़े हुए हैं, आपकी बातों को नहीं माना जा रहा है या ये कहा जा रहा है कि आपका डिसीजन गलत है, अपने डिसीजन पर अड़े रहिए क्योंकि आप सही हैं और उसे फॉलो करिए. क्योंकि इसका जो आफ्टर टेरो कार्ड है, जो आपके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे इसके, या जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत पॉजिटिव मिलेंगे. इमोशनली ये हीलिंग का मंथ है. आप इमोशनली जितना चोट खाए हैं पिछले सालों में, वो हीलिंग का मंथ आपके लाइफ में आने वाला है. देखिए द लाइट इज कमिंग हियर.
All right. All right. Moving back. So it is a month of healing. It's a month of freedom. It's a month of emotional freedom, to be precise. म्यूज़िक को आप अचानक से बहुत पसंद करने लगेंगे. आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगेगा. कानों में अच्छा कुछ अच्छा सुनना. ये स्पिरिचुअल भी हो सकता है क्योंकि आपका की कार्ड स्पिरिचुअल है. तो मुझे लगता है कि ऑडियो बुक्स आप काफ़ी सुनने की कोशिश करेंगे. आप कोशिश करेंगे उन उन वेबसाइट्स ऐप्स को डाउनलोड करने की जहाँ पर आप बुक्स को सुन सकते हैं. तो सुनना इज समथिंग विच इज़ अ की मैसेज है. और आप अच्छी चीज़ें सुनने में बिलीव कर रहे हैं. अच्छी चीज़ें ना सिर्फ आप बुक्स के मामले में सुनना चाहते हैं या ऑडियोज़ के मामले में सुनना चाहते हैं, आप अच्छी चीज़ें अपने बारे में भी सुनना चाहते हैं और आपका फोकस वही रहेगा. तो यहाँ पर एक अप्रोच होती है ना, बहुत हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता. जितना मैं कर सकता था या कर सकती थी उतना मैंने कर लिया. यही मेरा मैक्सिमम है. और इसके बाद अब मैं अपने बारे में सिर्फ अच्छा देखने वाले, सुनने वाले और कहने वाले लोगों को अपने आसपास रखना चाहता हूँ और अपनी लाइफ अच्छी रखना चाहता हूँ. तो इस तरह के यहाँ मैसेजेस जो हैं आपके लिए आते हैं. स्कॉर्पियंस, ये मंथ आपके लिए 2-3 चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट है. लोगों की कहीं भी बातों में आने की आपको ज़रूरत नहीं है. लोग आपको इवैल्यूएट कर रहे हैं, बोल रहे हैं आप गलत कर रहे हैं, आपने जो किया वो गलत किया. आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्योंकि उनको देखिए, व्हेन कर्मा प्लेज इट्स रोल, आपकी उन लोगों को तकलीफ हमेशा होगी जिन्होंने आपके साथ गलत किया है. उनको वो चीज़ तब सही लगती थी, लेकिन अगर आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं तो आपको उन लोगों को वो आप गलत लगेंगे. आई एम सॉरी. इसलिए आपको परेशान होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है. स्कॉर्पियंस, अपना काम करते रहिए. आप गलत नहीं है. तीसरे हफ्ते में आप किसी तरह की लीगैलिटी से डील कर सकते हैं या किसी डॉक्यूमेंटेशन से डील कर सकते हैं या किसी तरह की हार्श कम्युनिकेशन जो है उससे डील कर सकते हैं. अब इस हार्श कम्युनिकेशन का जो रोल है, ये कुछ पास्ट से रिलेटेड है. तो कहना, अगर मैं इसको सही तरीके से आपके सामने रखूँ या जस्ट एक कॉन्क्रीट तरीके से आपके सामने रखूँ, तो पास्ट में कही हुई कुछ बातें, कुछ लोग जो आपके बारे में नेगेटिव बात करते रहे हैं, आपकी इमेच्योर अप्रोच या आपके आसपास के लोगों की इमेच्योर कही हुई बातें आपको दोबारा सुननी या उनका सामना करना पड़ सकता है. इसकी वजह से आपके अंदर थोड़े से नेगेटिविटी डेवलप होने की हो सकता है कि नेगेटिविटी डेवलप हो आपके अंदर. और क्योंकि डेवल की एनर्जीज है, देखिए, डेवल की एनर्जी जब भी आती है नेगेटिविटी की बात करती है, एडिक्शन की बात करती है. यहाँ पर अगर मैं प्लेसमेंट को देखूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेंटल प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट हो सकता है. मेंटली आप थोड़ा सा वीक महसूस कर सकते हैं. आपको लगेगा कि हो सकता है आपको किसी तरह की दवाइयों की भी ज़रूरत पड़े, या हो सकता है कि आप यू वांट सम मेडिकेशन हैपनिंग. आपको सोने में दिक्कत हो सकती है. योर स्लीप विल बी डिस्टर्ब. तो वो आपको थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करनी पड़ेगी. डेवल को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर टू गिव यू अ क्लियर मैसेज, क्योंकि आपका जो आफ्टर जो आपका रिजल्ट कार्ड है वो बहुत अच्छा है. बट जो अभी करंट सिचुएशन में आप हैं उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड विच कार्ड ब्रिंग्स माई टेंशन, गेट्स माई टेंशन. हियर इज द 10 ऑफ कप्स. ऑलराइट, दिस इमोशन इज ऑल अबाउट फैमिली. ये फाइनेंशियल नहीं है, इमोशनल है कार्ड जो है. और दूसरा आई एम सॉरी, 10 ऑफ पेंटिकल हैज अपीयर्ड इन योर रीडिंग. बट ये काफ़ी कुछ इमोशन से जुड़ा हुआ कार्ड है. इमोशन से जुड़ा, हालांकि पेंटिकल कार्ड है, लेकिन क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, इट टॉक्स अबाउट द फैमिली विच इज़ इन द बैकग्राउंड. एंड इट इज़ टॉकिंग अबाउट अ डिसीजन जो आपको फैमिली से रिलेटेड डिसीजन हो सकता है, बट वहाँ पर पैसा भी इन्वॉल्व हो सकता है. आपकी वरी का कारण है एक हैप्पी फैमिली, कि आप एक हैप्पी फैमिली स्टैब्लिश कर पाएंगे. और वो टेंशन जो है आपके लिए, आपको है अभी फ़िलहाल, फैमिली का टेंशन आपको है अभी फ़िलहाल, हैविंग अ गुड फैमिली. क्योंकि आपके जो पुराने एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनकी वजह से आपकी लाइफ पीसफुल नहीं रही है फ्रॉम अ फैमिली लाइफ स्टैंड पॉइंट. लेकिन स्कॉर्पियंस, people who were there is someone who's supporting you. Okay, there is someone who is actually supporting you. तो आप अकेले नहीं हैं, पहली बात. दूसरी बात, जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, वही लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे आने वाले वक्त में. तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, आप इस लड़ाई में शायद अकेले हैं. लेकिन अकेले होने के बावजूद भी आपको रिजल्ट आप ही के फेवर में होंगे. लड़िए लोगों से. देखिए, जो लोग आपके सामने आज आपके ऑपोजिशन में खड़े हैं, वही लोग पीछे खड़े होकर आपको दे आर प्रेजिंग यू इन द बैकग्राउंड. तो एनर्जीज इसी तरह से आपके लिए बदलने वाली हैं.
अब इन बदलती हुई एनर्जीज के साथ अब आप 4th वीक में एंटर कर रहे हैं, लास्ट वीक ऑफ द मंथ 2024, योर फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. You will feel passionate suddenly about yourself. You will feel very passionate about, your life. You will feel like that you love yourself. Do you feel like, you feel actually, you will start feeling like that, you know that life is changing, and it is changing for good. Second, ये जो कनेक्शन है ये आपके पास से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है. कंसिडरिंग हम हर तरीके के डेक्स यहाँ पर इस्तेमाल करें, कोशिश करें एलैबोरेट करें, यहाँ पर आपके पास में जिस तरह का पैशन आप लाइफ में फील करना चाहते थे, उसी पैशन को आप राइट नाउ आपको उस पैशन का जो है थोड़ा सा लैक नज़र आता है यहाँ पे. दैट यहाँ पे जो पैशन आप पहले चाहते थे लाइफ में, वो पैशन आप फील कर रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का जिस तरह से आप चाहते थे वो इस तरह से आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में नहीं है. आप यू फील पैशनेट, यू फीलिंग गुड अबाउट थिंग्स, बट यू फीलिंग वेरी सम सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन हियर overall. Now, we are talking about the Queen of Wands here. Now, the Queen of Wands is also there in the reading, which is talking about ये जो फेज है आपके लाइफ का और जो लास्ट वीक है, यहाँ पर आते आते आपको ये रियलाइज होना शुरू होगा कि जितना स्ट्रिक्ट आप अपने साथ थे, जितना आप अपने लिए बैरियर्स और थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट किए हुए थे स्कॉर्पियंस, मुझे लगता है लास्ट वीक में आपको ये रियलाइजेशन होगा कि लाइफ में उतना स्ट्रिक्ट होना भी ज़रूरी नहीं है. एंड देन यू विल ट्राई टू जस्ट पुट योर गार्ड्स अ लिटिल डाउन. आप थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें कोई नुकसान नहीं है. दैट्स प्रीटी मच क्वाइट विजिबल हियर. 2-3 कार्ड्स जो हमने और पुल किए थे आपके लिए वो यहाँ पर ये हैं कि यू हैव 2 more cards here, which is so practically the end of the month where it is getting concluded, the 2 more additional cards for you Scorpions. The very first card is the God of the Moon. The God of the Moon, when it comes to the in the reading, it talks about your intuitions, your own powers. Now these 2 cards, which is your initial card, which was talking about the spiritual messages for you being a part of spirituality, is again is getting connected with this card, which is your intuition card. Now if something comes in your head which your intuition is telling you to do इस मंथ में, मुझे लगता है आपको वो फॉलो करना चाहिए. आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे. आपका जो लाइफ है उसका इंडिकेशन भी आपका बहुत ज़्यादा आप you'll certainly get attracted towards spirituality, Scorpions. And अभी फ़िलहाल ये छोटी चीज़ें आपको लग रही हैं. अभी आपको छोटी छोटी चीज़ें, एक किताब पढ़ लिया, एक मैसेज पढ़ लिया, एक स्पिरिचुअल कंटेंट पढ़ लिया, छोटे छोटे स्टेप्स आप इस मंथ में ले रहे हैं, लेकिन वो सारे स्टेप्स मिलकर आपके लिए एक बहुत बड़ी पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं. तो जो आप कर रहे हैं, जो सही कर रहे हैं, उसको करते रहिए, क्योंकि आप आने वाले समय में आपने अपने लिए एक बड़ा बहुत ही बड़ा आई वुड से you're creating your own empire yourself Scorpion. So जो आप कर रहे हैं उसको करते रहिए. ये मंथ कंक्लूड होगा पॉजिटिव नोट पर. 3rd वीक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, लेकिन उसके भी आउटकम्स आपके लिए बहुत अच्छे निकल कर आएंगे इन लॉन्ग टर्म. अगर आपके कार्ड्स को देखा जाए, आई जस्ट शो यू समथिंग ब्यूटिफुल हैपनिंग हियर इन योर रीडिंग. You were wishing for something which is coming your way. You have something which is talking about the emotional healing. If you were wishing that you had a wish of having an emotional healing, things getting beautiful for you, your heart feeling beautiful about everything, that's there. People who were not appreciating you, were criticizing you, or some or the other reason are becoming your fans, your people who will actually appreciate you, that's there. Another thing which is visible in the cards is that now you can just let your guards a little down and relax yourself, because चीज़ें आप पहुँचेंगी वहाँ जहाँ ये सब कुछ मिलकर आपके फेवर में कन्वर्ट होगा. So take care. God bless you. If in case you want to connect with me, please connect on 84489011791. Thank you. Take care. Bye bye.